Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 4 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात कर रहे हैं विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ सिंगल विंडो पोर्टल फॉर मेडिकल डिवाइस मैनेजमेंट। तो एक सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च किया गया है जहाँ पे हम जो भी मेडिकल डिवाइस को प्रोक्योर करेंगे उनको टेस्ट करना, क्या वो ठीक है या नहीं, क्या हमारी जो मार्केट स्टैंडर्ड्स हैं उससे वो बेटर हैं या नहीं, क्या जो हम जिस प्राइस पे उनको प्रोक्योर कर रहे हैं क्या वो ठीक रहेंगे या नहीं, क्या उससे हमारी जनता को बेनिफिट मिलेगा या नहीं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक अभी सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च किया गया। जो सिंगल विंडो पोर्टल रहेगा वो है NSWS। ये क्या है? नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल, करेक्ट। एंड इससे जो भी हम मेडिकल डिवाइसेस को इंपोर्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसका ध्यान रखा जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि किस कंट्री ने ये लॉन्च किया, तो हमारे इंडिया ने लॉन्च किया। और ये बनाया किसके द्वारा गया है? डेवलप एंड डिजाइंड बाय, ये आ जाए तो डेवलप्ड एंड डिजाइंड बाय इन्वेस्ट इंडिया। ठीक है, तो मार्क करके चलेंगे, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय इन्वेस्ट इंडिया, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपसे फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चन पूछूं, जैसे ज़रा बताओ अभी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किसने जीता? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023 का किस स्टेट के द्वारा जीता गया? कर्नाटका के द्वारा जीता गया। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बताओ तलई एंड नासिर, ये दो अभी मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, किस कंट्री की हैं? ये ईरान की हैं। फतेह 2 ये न्यूज़ में थी अभी, कहाँ की रहेगी? पाकिस्तान की। नेक्स्ट, डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन ये एक एक्सरसाइज है, पहला एडिशन हुआ था इस एक्सरसाइज का। इंडिया एंड किस कंट्री के बीच में हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो इंडिया एंड UAE के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है आपकी, डेजर्ट साइक्लोन, करेक्ट। पहला एडिशन रहेगा इसका। लोकेशन क्या रहेगी इस एक्सरसाइज की? राजस्थान, इंपॉर्टेंट, राजस्थान में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली, करेक्ट। 2 वीक लॉन्ग ये एक्सरसाइज रहेगी, 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक ये एक्सरसाइज चलेगी। तो ये है आपकी इंडिया और UAE के बीच में। इंडिया और UAE के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है जो कि आपकी एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है, वो है डेजर्ट ईगल। डेजर्ट ईगल, ये डेजर्ट ईगल का पहला एडिशन कब हुआ था? 2008 में हमें देखने को मिला था, करेक्ट। चलिए, डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान में हुई, इंडिया और UAE के बीच में हुई, और इसका ये पहला एडिशन था। नेक्स्ट अगर आपसे और क्वेश्चन पूछूं ज़रा बताओ अभी रिसेंटली वो पहली फर्स्ट वीमेन जो कि डायरेक्टर जनरल बनी है CISF की, क्या नाम रहेगा उनका? नीना सिंह। ठीक है, देन LIC के चीफ रिस्क ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है S सुंदर
कृष्णन। इसी के साथ साथ बताओ अभी रिसेंटली पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं कोटक महिंद्रा बैंक के? तो कोटक महिंद्रा बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन सी एस राजन। फिर बिस्लेरी की ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट की गई हैं? दीपिका पादुकोण। फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए इंडिया में कौन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? कार्तिक आर्यन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने अमेंड किया सीसीएस रूल्स को एंड हैज अलाउड फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट टू नॉमिनेट हर चाइल्ड एज अ फैमिली पेंशन। मतलब जैसे हम फैमिली पेंशन कब मिलती है? जब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है उस केस में, राइट, मान लो उनके निधन हो गया किसी केस में, तो उनके बच्चों को फिर फैमिली पेंशन मिलती है या फिर उनके स्पाउस को फैमिली पेंशन मिलती है। करेक्ट, स्पाउस को तो फिर पूरी लाइफ टाइम पेंशन मिलती है, लेकिन बच्चों को पेंशन मिलती है किसी एक निर्धारित टाइम तक जो कि होती है 25 साल तक, राइट। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने बच्चों को यहाँ पे नॉमिनेट कर सकती है कि इंस्टेड ऑफ हर स्पाउस, करेक्ट, उनके बच्चों को वो फैमिली पेंशन मिले, राइट। तो ये भी अमेंड किया गया है रूल, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ फीस्ट सॉफ्टवेयर ये एक फीस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इसरो के द्वारा, याद रखेंगे इसको, ठीक है, इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। फिर कोका कोला ने आईसीसी के साथ अभी पार्टनरशिप करी 2031 तक, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ हाईएस्ट पेड वीमेंस की लिस्ट में याद रखेंगे पीवी सिंधु ने लिस्ट किया है, इनका नाम आया, बट ये हाईएस्ट पेड वीमेन एथलीट नहीं है। हाईएस्ट वीमेन पेड एथलीट कौन रहेगा आप वो कमेंट करके बताओ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू इंप्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना? सबसे पहले तो पीएम विश्वकर्मा योजना, ये पीएम विश्वकर्मा योजना है क्या? याद रखेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना थी, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एंड एमएसएमईज को ग्रो करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं जो आर्टिशंस बनाएंगे उनको बेटर रीच प्रोवाइड कराने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, करेक्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले तो पहली यूनियन टेरिटरी कौन सी बनी जिन्होंने इंप्लीमेंट किया पीएम विश्वकर्मा योजना? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है ना, सेंट्रल स्कीम है, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई सितंबर 2023 में। एम रहेगा टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड रीच ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब मार्केट करना उन प्रोडक्ट्स की जो कि आपके आर्टिशंस एंड क्राफ्ट पीपल बनाते हैं। जो टैगलाइन रहेगी ऑफ द स्कीम वो क्या है? सम्मान, समर्थ्य, समृद्धि, ये आपकी टैगलाइन रहेगी स्कीम की। एंड जो बेनिफिशियरी है एंड शुड बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, मतलब ये आपके जो बेनिफिशियरी है कम से कम 18 साल के होने चाहिए फॉर दिस बेनिफिट। फिर यहीं पे याद रखेंगे यहाँ पे लोन भी इजी लोन मिल जाएगा अप टू 3 लाख रुपीज इन आर्टिशंस को एट जस्ट अ 5% इंटरेस्ट रेट, 5% इंटरेस्ट रेट पे इनको लोन मिल जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी 5 से 7 दिन, फिर 15 से 30 दिन, ऐसी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। और इन ट्रेनिंग्स को 500 रुपये पर दिन के हिसाब से भी मिलेंगे, एज वेल एज मॉडर्न टूल किट्स भी प्रोवाइड की जाएगी वर्थ 15,000 रुपीज। नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यू कंट्रीज हैव ज्वाइंड ब्रिक्स इन 2024? तो कितनी कंट्रीज ने अभी ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है? ब्रिक्स क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, करेक्ट। तो 1 जनवरी 2024 से अभी ब्रिक्स में कितने नए मेंबर आ गए हैं? तो 5 नए मेंबर आ गए हैं, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड सऊदी अरेबिया। इवन अभी एक न्यूज़ ये थी कुछ टाइम पहले कि जो ये मेंबर्स ऐड हुए हैं, इन मेंबर के ऐड होने के बाद बहुत चांस है कि ब्रिक्स अपनी खुद की एक करेंसी लॉन्च कर सकता है जो कि बैक्ड होगी बाय गोल्ड से ये करेंसी बैक्ड होगी। एंड कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है अभी, लेकिन देयर इज अ हाई चांस कि ये फ्यूचर में हो सकता है, करेक्ट। तो याद रखेंगे 15वीं ब्रिक्स समिट हुई थी, ये कहां पे हुई थी? इसकी चेयरमैनशिप किसके पास थी? तो साउथ अफ्रीका के पास थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर ये तो 15वीं थी, 16वीं ब्रिक्स समिट कहां पर होगी? तो याद रखेंगे 16वीं ब्रिक्स समिट रशिया में होगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। आरबीआई ने रिवाइज की गाइडलाइंस फॉर
inoperative accounts and unclaimed deposits and enhance the bulk deposit limit for large urban cooperative banks to 1 करोड़ रुपीस। देखो सबसे पहले याद रखेंगे कि जो भी अनक्लेम डिपॉजिट्स है ना, वो आपके एक अभी आरबीआई ने रूल निकाला कि जो भी अनक्लेम बैलेंस है फॉर मोर देन 10 ईयर्स उनको आरबीआई के डीईए फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पहली चीज याद रखेंगे। दूसरी, जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, उनकी जो बल्क डिपॉजिट लिमिट है ना, उसको इंक्रीज कर दिया है टू 1 करोड़ रुपीस। पहले ये 15 लाख रुपए थी, अब इसको इंक्रीज कर दिया टू 1 करोड़। ऑलमोस्ट 6.6%, 6.6 टाइम्स यहाँ पे ये इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि जो भी अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं उनको आरबीआई के डीईए फंड में भेज दिया जाएगा। 10 साल से ऊपर का जो भी अनक्लेम डिपॉजिट होगा एंड 1 करोड़ तक आप यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में जो भी बल्क डिपॉजिट्स होंगे उसको इंक्रीज कर दिया टू 1 करोड़ रुपीस। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है लियो, अलॉन्ग विद विच पेमेंट बैंक इन्होंने लॉन्च किया मास्टर कार्ड पावर्ड लियो 1 कार्ड को। लियो क्या है? लियो आप यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि विच पेमेंट बैंक, तो लियो ने पार्टनर किया एनएसडीएल पेमेंट बैंक के साथ। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं लियो 1 एंड एनएसडीएल पेमेंट बैंक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक मास्टर कार्ड पावर्ड प्रीपेड आईडी कार्ड। तो लियो 1, इसको पहले हम फाइनेंस पीर के नाम से जानते थे। ये एक एडू फिनटेक स्टार्टअप है इन कोलैबोरेशन विद एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। इन्होंने टाइप किया ताकि लॉन्च किया जा सके लियो 1 कार्ड, जो कि इंडिया का पहला नंबरलेस प्रीपेड आईडी कार्ड रहेगा विद मास्टर कार्ड एज अ नेटवर्क पार्टनर। पहली चीज। दूसरी चीज याद रखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने लॉन्च किया एनसीएमसी रुपे प्रीपेड कार्ड। एनसीएमसी क्या है? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये एक रुपे कार्ड रहेगा, राइट। इसको लॉन्च किया गया विद वन नेशन वन कार्ड इनिशिएटिव एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस एनसीएमसी रुपे प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया है, मार्क करेंगे। फिर अगर बात करें लियो 1 की, तो फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? रोहित गजबिया, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। इसको एस्टेब्लिश किया गया 2017 में। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे? देबादत्त चांद, हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में। एस्टेब्लिश इसको 1908 में किया गया और टैगलाइन रहेगी इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। Moving on, HDFC Bank executed transactions as a part of the UPI for secondary market facility. I repeat, HDFC Bank Limited ने execute किया transactions via NPCI's UPI payment app as a part of UPI for secondary market facility. And ये basically किस लिए है? This is in line with the trading supported by blocked amount in secondary market, जो कि permitted है by SEBI के द्वारा and Indian stock exchanges के द्वारा। ये similar है to ASBA facility available for primary मार्केट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है आरबीआई ग्रांटेड पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस टू किनको। तो पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस अभी किनको मिला है? तो दो ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है, एक तो है टाटा पे और दूसरा है आपका डिजीओ। तो दोनों मार्क करके चलेंगे, इन दोनों को अभी रिसेंटली आपका पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिर इकोनॉमी एंड बिजनेस। तो अभी आरईसी इन्होंने टाई अप करा, एक एमओयू साइन किया आरवीएनएल के साथ, रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ। और ये एमओयू किस लिए? फॉर फंडिंग ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ आरवीएनएल, जो कि ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स रहेंगे, राइट। फाइनेंस करने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 35,000 करोड़ रुपीस। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं 5 साल में आगे कंप्लीट होंगे। ये प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करते हैं आपके मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, देन रोड, पोर्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं विच इंडियन क्रिकेटर वन प्यूबिटी स्पोर्ट मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इन्होंने लायनल मेसी को भी लिस्ट में था लेकिन उनको भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये है विराट कोहली और इन्होंने प्यूबिटी स्पोर्ट्स मैन एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड को जीत लिया है। करेक्ट। अगर ये तो था मेंस की कैटेगरी में, अगर वीमेंस का पूछा जाए तो वीमेंस का किन्होंने जीता? वो है आइताना बॉनमाती। ये एक फुटबॉलर है, स्पेनिश फुटबॉलर है और ये प्यूबिटी स्पोर्ट्स वीमेन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इन्होंने जीता। आप यहाँ पे देख सकते हैं लायनल मेसी को भी पीछे छोड़ दिया विराट कोहली ने इन दिस, एंड यहाँ पर स्पेनिश फुटबॉलर आइताना बॉनमाती इन्होंने प्यूबिटी फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड को जीत लिया है।
विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है 2017 में, एंड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से 2018 में इनको सम्मानित किया गया था। अर्जुन अवार्ड से इनको 2013 में सम्मानित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने एक 3 मेंबर का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को सेटअप किया टू सेटल द अनफोर्सीन डिस्प्यूट्स बिटवीन डेवलपर्स एंड REIAs। REIAs कौन होते हैं? जो रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज होती हैं, एंड जो रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपर्स हो गए, जो प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे, राइट, जो आपके सोलर पैनल, सोलर हीटर्स वगैरह जो भी चीज़ें डेवलप करेंगे, उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट आता है उसको सेटल करने के लिए एक 3 मेंबर की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी सेटअप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। मेन एम क्यों रहेगा इस कमेटी का सेटअप करने का? रीजन बीइंग कि हम चाहते हैं 2030 तक इंडिया 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करे। इसको अचीव करने के लिए जो भी हर्डल्स बीच में आ रही हैं, वो ये 3 मेंबर की कमेटी जो भी रेजोल्यूशंस, जो भी डिस्प्यूट्स आ रहे हैं इनके बीच में, उनको सॉल्व करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर पर। तो CCI ने अप्रूव किया 100% एक्विजिशन ऑफ GVK पावर लिमिटेड बाय PSPCL। PSPCL क्या है? पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक्वायर करेंगे 100% स्टेक इन GVK पावर लिमिटेड। सिमिलरली नेक्स्ट बात करते हैं ICICI वेंचर। ये अपना 42% स्टेक सेल कर रहे हैं थियोम्ब्रा फूड लिमिटेड। ये थियोम्ब्रा फूड लिमिटेड में 42% स्टेक इनका कितने का रहेगा? 1200 करोड़ रुपए का ये सेल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिर आवाम से आवाम के लिए। ये एक ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है किस स्टेट या यूटी के द्वारा? तो जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा आपका आवाम से आवाम के लिए ये ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल लॉन्च किया गया, ताकि वहाँ के सिटीजन्स को एंड पुलिस पर्सनल को एक डिसेंट्रलाइज मैनर में इश्यूज जो भी फेस हो रहे हैं वो यहाँ पे सॉल्व किए जा सकें। तो जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है ये आवाम से आवाम के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। CDSCO ने लॉन्च किया NSWS पोर्टल फॉर मेडिकल डिवाइस मैनेजमेंट। डेजर्ट साइक्लोन ये पहला एडिशन था इंडिया और UAE के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो राजस्थान में हुई। देन गवर्नमेंट ने अमेंड किया CCS पेंशन रूल एंड अलाउ किया फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स को टू नॉमिनेट हर चाइल्ड फॉर फैमिली पेंशन। जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द फर्स्ट UT टू इम्प्लीमेंट PM विश्वकर्मा योजना। 5 न्यू कंट्रीज ने ज्वाइन किया ब्रिक्स को इन 2024। RBI ने रिवाइज किया गाइडलाइंस फॉर इनऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अनक्लेम डिपॉजिट्स। एंड लियो एंड NSDL पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया मास्टर कार्ड पावर्ड लियो 1 कार्ड को। HDFC बैंक एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शंस एज अ पार्ट ऑफ द UPI फॉर सेकेंडरी मार्केट फैसिलिटी। RBI ने ग्रांट किया पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस टू टाटा पे एंड DGO। REC लिमिटेड एंड RVNL इन्होंने साइन किया एक MOU टू फाइनेंस रेल विकास निगम लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप टू 35,000 करोड़ रुपीज। इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली इन्होंने जीता प्यूबर्टी स्पोर्ट्स मैन एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड। MNRE ने सेटअप की एक 3 मेंबर का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी टू सेटल द अनफोर्सीन डिस्प्यूट्स बिटवीन डेवलपर्स एंड एजेंसीज। देन CCI ने अप्रूव किया 100% एक्विजिशन ऑफ GVK पावर बाय PSPCL। ICICI वेंचर टू सेल देयर एंटायर 42% स्टेक इन थियोब्रोमा फूड लिमिटेड। जम्मू एंड कश्मीर DGP इन्होंने लॉन्च किया ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल आवाम से आवाम के लिए। राइट, तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है 66th फाउंडेशन डे DRDO का कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो याद रखेंगे 2024 में 1 जनवरी को हमने ऑब्जर्व किया 66th फाउंडेशन डे। राइट, DRDO क्या आपका? ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी है या विंग है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको 1958 में इस्टेब्लिश करा गया था और अभी 2024 में 1 जनवरी को इसका 66th फाउंडेशन डे हमने ऑब्जर्व किया। ठीक, फिर इसी के साथ याद रखेंगे DRDO के चेयरमैन ने अभी रिसेंटली एक क्वालिटी डिस्टेंस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे डेवलप किया है, इसको लॉन्च किया, जो कि पुणे महाराष्ट्र बेस्ड लैब जिसका नाम है हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी, इनके द्वारा डेवलप किया गया था, ताकि जो एक्सप्लोजिव से हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनको यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय किया जा सके। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
फिर यहाँ पे कुछ अगर हाइलाइट्स देखें डीआरडीओ के 2023 में, तो डीआरडीओ ने रिसीव किया एओएन वर्थ 1,42,000 करोड़ रुपए का, ताकि वेरियस डीआरडीओ के जो सिस्टम्स हैं उसको डेवलप किया जा सके। एंड ये हाईएस्ट एवर अमाउंट रिसीव बाय डीआरडीओ है। देन 1650 टीओटीज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज देखने को मिले, 109 लाइसेंसिंग अग्रीमेंट्स फॉर टीओटी देखने को मिले। देन डीआरडीओ ने फाइल किए मोर देन, ये यहाँ पे याद करेंगे, 212 पेटेंट्स फाइल किए, जिसमें से 145 पेटेंट्स ग्रांट कर दिए गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट, विच स्टेट हैज एमर्ज्ड एज द पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया। हम जानते हैं फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है इंडिया की, मुंबई। कैपिटल कौन सी इंडिया की, न्यू दिल्ली। अगर पूछा जाए पेट्रो कैपिटल कौन सी रहेगी, तो वो है गुजरात, राइट। यहाँ पे आपके क्यों बोला जाता है गुजरात को, क्योंकि यहीं पर आपका हमें देखने को मिलता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जामनगर रिफाइनरी एंड ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड की या ओएनजीसी पेट्रो लिमिटेड की यहाँ पर आपकी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर, भरूच में। तो इनकी वजह से इसको पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है गुजरात को। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो अभी बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया सुपर स्पेशल 175 डेज फिक्स डिपॉजिट 7.5% इंटरेस्ट रेट पे, राइट। एफडी लॉन्च करी बैंक ऑफ इंडिया ने 175 डेज के लिए, कितना इंटरेस्ट दे रही है, 7.5%। अभी हमने देखा है एसबीआई ने सबसे पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ाए फिक्स डिपॉजिट पे, फिर पीएनबी बैंक के भी हमें ये इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए दिखे, और अब बैंक ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पे नई इंटरेस्ट रेट लॉन्च कर दी है। ये जो स्पेशल फिक्स डिपॉजिट है ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर रहेगा। सीनियर सिटीजन जो कि 60 से 80 साल के हैं विल गेट एन एडिशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.5% ऑन देयर रिटेल टर्म डिपॉजिट्स, जो 2 करोड़ से नीचे के अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 6 से 3 साल के लिए, 6 महीने से 3 साल के लिए। सुपर सीनियर सिटीजन उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा ऑफ 0.65% ऑन सेम टर्म डिपॉजिट, एंड एट प्रेजेंट बैंक ऑफ इंडिया पेज 4.5% इंटरेस्ट रेट फॉर 175 डेज टेन्योर below a deposit of 2 crores, and 7.25% is the highest interest rate paid by Bank of India for 2 years deposit. नेक्स्ट आ जाता है हु इज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो अरविंद पनागरिया, नॉट पंगारिया, पनागरिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द 16वें चेयरमैन ऑफ 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनागरिया। आप इनको याद रखेंगे, ये 16वें फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो ये हैं, करेक्ट। अरविंद पनागरिया की बात करें तो ये पहले वाइस चेयरमैन रह चुके हैं नीति आयोग के 2015 से 2017 तक, और इनको अभी रिसेंटली चेयरमैन अपॉइंट किया गया है 16वें फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। अगर बात करें फिर नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट हैज टॉप्ड अमंग द स्टेट्स विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स। हम देखते हैं आप शेयर्स बाय करते हैं, राइट, आप इक्विटी बाय करते हैं अलग अलग कंपनीज की, करब जोमेटो, पेटीएम वगैरह आप इनकी बाय करते हैं, राइट। जैसे फिर आप देखते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, आप ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं, आप इंट्राडे भी करते हैं, आप फ्यूचर्स भी खेलते हैं। तो ये सारे क्या होता है, ट्रेडिंग सिस्टम्स होते हैं। और इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, बेसिकली जो कि आपका स्टॉक्स लेके भूल जाते हैं, काफ़ी टाइम तक रखते हैं, जब वो बढ़ जाएगा उसको बेच देते हैं। ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स आपके एक बंडल में लाए जाते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट किया जाता है, राइट। और एक व्यक्ति यहाँ पे म्यूचुअल फंड को संभालता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस स्टेट ने टॉप किया विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स, मतलब कौन सी स्टेट में से सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो वो रहेगी महाराष्ट्र। मार्क करेंगे, महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया है विद अ ग्रोथ ऑफ 16.9% एनुअली एंड 1.48 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर हमें रजिस्टर्ड यूजर देखते हैं जो कि आपके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये डाटा एनएसई के द्वारा रिलीज किया गया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। फिर टॉप पर तो आ जाता है महाराष्ट्र, सेकंड पोजीशन पे आ जाता है यूपी और थर्ड पे आ जाता है गुजरात। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नस कार्लसन, इन्होंने वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप को जीत लिया है। इसका 7वीं बार इन्होंने इस टाइटल को जीती है मैग्नस कार्लसन ने। ये मैग्नस कार्लसन डेनमार्क से बिलोंग करते हैं एंड मैन कैटेगरी में इन्होंने जीत लिया। अगर मैं वीमेन कैटेगरी की बात करूं तो रशिया की वैलेंटीना ग्यूनिना इन्होंने जीत लिया फॉर द सेकंड टाइम एंड फॉर द 7th टाइम मैग्नस कार्लसन ने इस वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप को जीता है। ठीक, ये हुई कहां पर थी, तो ये उज्बेकिस्तान में लोकेशन आ सकता है। कहां पर हुई थी वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप, तो ये उज्बेकिस्तान में हमें देखने को मिली थी। फिर आप यहां पर देख सकते हैं टॉप 3 की बात करें मेंस कैटेगरी में मैग्नस कार्लसन,
डेनिल डुबोव सेकंड पोजीशन पे, वीमेंस में वैलेंटिना ग्यूनिया रशिया की फर्स्ट पोजीशन पे एंड अलेक्जेंड्रा सेकंड पोजीशन पे ऑफ स्विट्जरलैंड। मूविंग ऑन, ऑब्यूटरी की बात करें तो पद्मा भूषण अवार्डी वेद प्रकाश नंदा जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये इंडियन अमेरिकन एकेडमिशियन है। इनको पद्मा भूषण अवार्ड से 2018 में सम्मानित किया गया इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, करेक्ट। एंड डेनवर कोलोराडो यूएसए में इनका निधन हो गया। 1934 में नवंबर में इनका जन्म हुआ था, जो कि पंजाब ब्रिटिश इंडिया है, जो कि अभी पाकिस्तान में है जो पार्ट, करेक्ट। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर। तो केरला गवर्नर के द्वारा अभी रिसेंटली एक बुक लॉन्च की गई, राम मंदिर राष्ट्रा मंदिर एक सजी विरासत। गवर्नर कौन है केरला के? आरिफ मोहम्मद खान। इनके द्वारा ये बुक रिलीज की गई। कहाँ पे रिलीज की गई? ये बुक रिलीज की गई एट एन इवेंट जो कि रंग भवन ऑडिटोरियम में हुआ इन ऑफ आकाशवाणी इन न्यू दिल्ली। इस बुक को एक्सप्लोर किया गया। ये बुक एक्सप्लोर करती है अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉर्ड रामा नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द एशियन कंट्रीज, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के द्वारा एक बुक रिलीज की गई, महाकविथाई। महाकविथाई मतलब अ ग्रेट पोयम, करेक्ट। ये पोएट वायरामुथु के द्वारा इसको रिलीज किया गया एट एन इवेंट जो कि चेन्नई तमिलनाडु में हुआ 1 जनवरी 2024 को। ये जो बुक है ये कवर करती है वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट जो इंक्लूड करते हैं जैसे जेनेसिस ऑफ यूनिवर्स मतलब फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, प्लैनेट अर्थ, फंक्शंस ऑफ 5 एलिमेंट्स, क्लाइमेट चेंज एंड देयर इम्पैक्ट, ठीक है। M.K. स्टालिन, इनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया। मूविंग ऑन, स्टेट न्यूज पर आते हैं। फिर केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई, के स्मार्ट ऐप। ये के स्मार्ट ऐप क्या है? केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। इस ऐप का बेसिकली एम क्या रहेगा कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज है ना वो लोगों तक पहुंचाना ऑफ केरला, करेक्ट। उनको डिजिटल माध्यम की मदद से जो भी लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो यहाँ पर उनको एक्सेस कर सकें। अगर सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज क्या होंगी? जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, करेक्ट। फिर मैरिज के लिए आपके सर्टिफिकेट हो गए, प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गए, बिजनेस लाइसेंसेज हो गए, ये सारे प्रोवाइड कराने का ये। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ये 8वीं प्रेसिडेंट बनी है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की। लग्जमबर्ग में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। तो कौन है वो है नाडिया कैल्विनो। आप इनको यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ये 8वीं प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई हैं यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की, जो कि एक लैंडिंग आर्म है यूरोपियन यूनियन का। ये किनको सक्सीड करेंगी? वर्नर हॉयर। वर्नर हॉयर ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं एंड 2012 से इनके पास ये पोजीशन थी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। लेकिन अब नाडिया कैल्विनो ये जो स्पेन की हैं ये बन गई हैं यहाँ पे फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट, टाटा पावर रिक्वायर्ड हाउ मच परसेंट स्टेक? एक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, एक्वायर्ड हाउ मच परसेंट स्टेक इन बीकानेर स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो अभी रिसेंटली टाटा पावर ने 100% स्टेक एक्वायर कर लिया है इन द बीकानेर स्पेशल पर्पस व्हीकल, करेक्ट। कितने अमाउंट के लिए इन्होंने स्पेंड किया है यहाँ पर? 18.6 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा पावर इन्होंने 100% इक्विटी स्टेक इन बीकानेर थर्ड नीमराना सेकेंड ट्रांसमिशन लिमिटेड जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल रहेगी, 18.6 करोड़ के लिए इसमें अपना स्टेक एक्वायर कर लिया है। स्पेशल पर्पस व्हीकल वॉज सेटअप बाय PFC कंसल्टिंग लिमिटेड विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है वॉज फॉर्म्ड इन जून 2023 फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट विच विल बी डेवलप्ड ऑन अ बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस, बूट बेसिस पे। नेक्स्ट, which space organization launched first X-ray polarimeter satellite to study black holes and neutron stars in space? सबसे पहला मिशन ऐसा जो ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार को स्टडी करे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, मतलब USA के द्वारा। सेकंड कंट्री कौन सी बन गई है? वो है इसरो। और सेकंड ऑर्गेनाइजेशन इसरो, कंट्री हमारी इंडिया, करेक्ट। तो यहीं पे पूछा जा रहा है कि इंडिया का पहला और वर्ल्ड का सेकंड एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट जो कि ब्लैक होल्स को स्टडी करेगी एंड न्यूट्रॉन स्टार्स को स्टडी करेगी, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन 5 यहाँ पे याद रखेंगे, इसरो। इसरो ऑप्शन 5 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इससे इंडिया का ये पहला रहेगा और वर्ल्ड का सेकेंड ऐसा मिशन रहेगा जो कि ब्लैक होल्स को एंड न्यूट्रॉन स्टार्स को स्टडी करेगा। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। 5 होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स, और एक मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में दिया था। अब है वो क्या था कि हाईएस्ट पेड एथलीट, फीमेल एथलीट कौन रहेंगी, बताइए उसका नाम। फिर व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व्ड?
सेकेंड, व्हाट वाज द प्राइमरी फील्ड ऑफ वेद प्रकाश नंदा, जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया। थर्ड, अदौरा मैजिक सिटी जो फर्स्ट होम ग्रोन क्रूज शिप है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, मोहम्मद यूनुस, इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 2006 में फॉर पायनियरिंग माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग, एंड इनको रिसेंटली ये न्यूज़ में है, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और ये क्यों न्यूज़ में, ये भी बताओ। फिफ्थ, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कीमो ड्रग अवेलेबल एज सिरप फॉर्म इन इंडिया। सिरप फॉर्म में जो पहला कीमोथेरेपी होती है आपके ड्रग कैंसर को खत्म करने के लिए, राइट, उसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट होता है कीमो। तो पहला कीमो ड्रग जो कि सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है इंडिया में, उसका नाम क्या रहेगा, ये भी बताओ। तो ये 5 होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए आप सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.